dealing with the properties of dot product, and the next property is, which I call fifth property, for already we have talked about in the previous turn, is dot product of unit orthogonal vectors. Dot product of unit orthogonal vectors. What are unit orthogonal vectors? What are unit orthogonal vectors? Well, they are nothing but, you know them very well. I cap, j cap, and k cap. Aren't they unit orthogonal? Angle between any two is 90. After all, they are all unit. Of course, they are unit. We have defined them. I cap parallel to x axis, j cap parallel to y axis, and k cap parallel to z axis. This angle is 90. Yes, this angle is 90. This angle is 90. Appears or not, but this angle is also 90. And this angle is also 90. You can have 3 fingers of your hand and check out. आप तीनों को ऐसे स्प्लिट करिए और देखिए तीनों के बीच 90 है कि नहीं है. Could you appreciate that? They are all 90. They are mutually orthogonal. किसी भी दो के बीच में एंगल 90 डिग्री है. Now, how many dot product can be conceived out of them? How many dot product can be conceived out of them? Of course, we can conceive 9 different dot products. Why? Because I can conceive I cap dot I cap. Is it or not? Of course it is. And then I cap dot j cap, and then I cap dot k cap. भाई I का I के साथ, I का j के साथ, I का k के साथ. Second row, j dot j cap dot I cap, j cap dot k cap, and j cap dot j cap, right? लिखिए यहाँ पे डॉट के कैप. यू नो, हर रो में मैं पहला वेक्टर आई जे के रखूंगा और कॉलम देखिए यहाँ पे, देखिए आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के साथ, आई का आई के साथ, आई का जे, जे का आई के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ. तो के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, and k cap dot k cap. You know, these are the 9 different dot products that we need to talk about. And see, the previous 2 properties will help you do the job. The previous 2 properties will help you do the job very smartly and very fast. Can you see this property? A dot product of vector with itself, its magnitude square. किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने खुद के साथ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है. एंड दस 3 चीजें तो मेरे को तुरंत पता लग गई इसमें. क्या? ओ माय गॉड, इट इज सो सिंपल. दैट इज आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट होता है कि नहीं होता है? तो 1 स्क्वायर इज 1 और नॉट. जे डॉट जे विल बी इक्वल टू 1, के डॉट के विल बी इक्वल टू 1. विल इट बी और नॉट? ये तीनों तो 1 हो गए भाई, राइट. अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए. फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल at 90 degree, then dot product vanishes. The dot product is equal to 0. Oh my goodness, सबके बीच में एंगल 90 है. चाहे आई जे हो, चाहे जे आई हो, चाहे आई के हो, चाहे के आई हो, चाहे के जे हो, चाहे जे के हो, सब एंगल 90 की नहीं. तो दे आर ऑल 0. तो आउट ऑफ 9 ओनली 3 सर्वाइव एंड माई अदर 6 are 0. Other 6 are 0. Have you all understood this? Have you all understood this very clearly? कोई डाउट किसी को? Can we proceed? Have you all understood this? That's very good. That means जब डॉट प्रोडक्ट की बात होगी किसी भी दो आई कैप जे कैप के कैप में, भाई 9 डिफरेंट चीजें हम कंसीव कर सकते हैं. आप देखिए 9 से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई? आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के साथ, जे का आई के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, के का के साथ, राइट. Out of this, only 3 will survive. Only 3 will survive. Other 6 will be 0 because they are mutually orthogonal. They are mutually 90, perpendicular to each other. That's why आपका ये 0 होगा. Agree? Can we proceed now? Okay, that's good. That's good. Now I go over to
dot product in component form. It is very important task, and that is what you very often do in physics and maths. So let me put the heading first and then slide up to work out the article, that is dot product component form. Dot product in component form. Now notice that carefully. Why do we require it at all? क्यों चाहिए भाई मेरे को? क्यों चाहिए? आइए सुनिए, ये हम लोग का जो पहले एक सीक्वेंस ऑफ स्टडी थी उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं. कैन यू सी दैट? एक स्टेज आई थी जब हमने आपको बताया था कि हाउ यूजफुल इज योर रेजोल्यूशन प्रोसेस. हाउ यूजफुल इज योर रेजोल्यूशन प्रोसेस. डिडंट आई टेल यू दैट इज कितना यूजफुल है रेजोल्यूशन प्रोसेस? कहाँ बताया था हमने? यहाँ बताया था. सी, given vectors in the component manner, I can add two vectors. Agree or not? I'm so sorry. I can add two vectors. What's happening? Why the pen color is not getting selected? I can add two vectors. Strange it is. I want white. Okay. I can add two vectors, I can add three vectors, I can subtract two vectors, I can scalar multiply two vectors. सब मैं कर सकता हूं अगर मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिए हुए हैं तो क्वेश्चन आगे ये उठता है कि डॉट प्रोडक्ट भी ऐसा हो सकता है क्या? डॉट प्रोडक्ट भी अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, इट इज नॉट बीन ड्रॉन, एक एरो के साथ ड्रॉ ना किए गए हों. भाई अगर एरो के साथ ड्रॉ करके आप उसे कहा जाए कि वेक्टर को ऐड करिए तो आप पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे. पर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो आप ये टेक्निक लगाएंगे. इट इज मच फास्टर और नॉट इन लाइक वाइज. अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर एरो ग्राफिकली दिया हुआ है तो आपको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा. पर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया तो इट इज वेरी इजी. अगर आपको स्केलर मल्टीप्लाई करना है, कोई वेक्टर एरो ग्राफिकली दिया हुआ एरो बना के, तो आप उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, राइट. पर यहाँ पर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया, हाउ सिंपल इट इज, राइट. सो द आइडिया इज जब हर चीज मेरे कंपोनेंट फॉर्म में पॉसिबल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट प्रोडक्ट शुड आल्सो बी पॉसिबल and we should have the technique to compute the dot product based upon this component form. So this is what is the extension. So let me proceed and talk about it, and I'll be referring to scroll up and referring to the previous property very often. Given that two vectors A, which is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, am I correct? And vector B, which is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, agree? I want their dot product. I want A dot B. The fundamental way of computing dot product was, the fundamental method of computing dot product was, that is कि आप एक वेक्टर की दूसरे पे आप शैडो देखते थे और पहले वेक्टर से में दूसरे वेक्टर की शैडो को मल्टीप्लाई करते थे. यही फंडामेंटल तरीका था. पर अब मेरे को ग्राफिकली वेक्टर दिए ही नहीं है, अब मेरे को वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, रिजॉल्व करके दिए हुए हैं. अग्री और नॉट? हाउ डू आई फाइंड डॉट प्रोडक्ट? इट इज सो सिंपल डियर. मैंने लिख दिया इसको, एक ही जगह क्या लिख दिया, a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Agree? Right? Now, I ask you, you need to speak. What is a1? स्केलर है कि वेक्टर है? Loudly, please. Very correct. What is A2? Scalar. A3? B1, B2, B3. They are all scalars. अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन.
ये बताइए मेरे को A1 आई कैप क्या है, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर, बिकॉज सेंस ऑफ डायरेक्शन इसको आ गई आई कैप लगाने से. दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर. With I cap and J cap, they become vector because they get the sense of direction also, don't they? अब आपके लिए भैया ये एक सब वेक्टर्स हैं. मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपके लिए ये सारे जो हैं वो एक वेक्टर्स हैं. ये एक वेक्टर है, इसके अंदर क्या हमको पता नहीं. ये एक वेक्टर है, इसके अंदर क्या पता नहीं. ये एक वेक्टर है, आप इसके अंदर क्या पता नहीं. ये एक वेक्टर है, इसके अंदर क्या पता नहीं. ये एक वेक्टर, इसके अंदर क्या पता नहीं. ये एक वेक्टर, इसके अंदर पता नहीं. ये 3 वेक्टर्स इसमें हैं और 3 वेक्टर्स इसमें हैं. ये बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है अलजेब्रा में अगर x इंटू वाई प्लस जेड करना हो तो x डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे और आता है रिजल्ट क्या? रिजल्ट आता है एक्स वाई प्लस एक्स जेड आता है कि नहीं? पर अगर कोई पूछे कि भैया x प्लस वाई, कोई पूछे कि अब मेरे को अब चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी चाहिए, तो क्या आप ये नहीं कर पाते क्या? ये भी कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं भाई? पहले आप क्या करते हैं, पहले आप ए को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बोलिए अग्री और नॉट. तो क्या लिखते हैं? ए सी प्लस ए डी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फिर आप सी को बी को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या लिखते हैं? बी सी प्लस बी डी. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इन अ वेरी सिमिलर मैनर ये वेक्टर, इन द वेक्टर से डॉट जब होगा, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Did you see that dot product is distributive? Did you see that dot product is distributive? Agree or not? डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो भैया अगर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और तीन तीन वेक्टर तीन तीन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए ना. क्यों आप पीछे हट रहे हैं? ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा पहले? फिर क्या होगा? फिर ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. फिर क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए. ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. कितने बनेंगे? 9 और नॉट? 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 9 बनेंगे ना? 9 बनेंगे. ओके, तो लेट मी अनडू एंड नाउ ओपन देम अप and now it is time to distribute them. Okay, okay, probably I have to pull it out. Okay, okay. तो पहले आपका कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? A1 आई कैप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. किस पे? इस पे, इस पे, इस पे. जब इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा? मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए. A1 इंटू बी वन, A1 B1, आप देखते जाइएगा. A1 B1 आई कैप डॉट, ये देखो ये डॉट तो है ना बीच में, डॉट है ना कि नहीं है? A1 B1 आई कैप, ये आई कैप, ये भी आई कैप. तो A1 B1 आई कैप डॉट आई कैप और नॉट हो गया डिस्ट्रीब्यूट वाला. प्लस A1 B2, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, आई कैप डॉट जे कैप. प्लस A1 B3 आई कैप डॉट के कैप. एम आई करेक्ट और नॉट? प्लस अब किसको डिस्ट्रीब्यूट होने का समय आ गया है? A2 को. A2 अब तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. A2 A2 जे कैप तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? A2 B1 A2 B1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A2 B3 जे कैप डॉट के कैप. कुड यू ऑल गेट दैट? सब ऐड होते जा रहा है, सब ऐड. यहाँ प्लस इक्वल नहीं लगा, प्लस लगा है. प्लस इसलिए तो मैंने कहा 9 टर्म्स आएंगे टोटल. अब A3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे. अब A3 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा? A3 B1 के कैप डॉट आई कैप प्लस A3 B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप. कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट? कोई डाउट किसी को? कंफर्म कर लीजिए 9 है कि नहीं है. आइए देख लीजिए. 9, देर ऑल 9, देर ऑल 9. एक ये, एक
2 3 4 5 6 and this is what 7 8 9, you know, right? There are 9 different distribution, all added together, but unfortunately or fortunately, whatever way you perceive it, only 3 are going to survive. Only 3. Why? The reason known to you very well. The reason known to you very well from the previous property. Look at that. When we have I dot I dot j, I dot k, j dot I, j dot j, j dot k dot I, k dot j, k dot k, only 3, the diagonal one survive. Only the diagonal one survive. Oh, I'm so sorry. Only these 3 survive. बाकी सब 0 होते हैं. कौन सर्वाइव करता है बेटा? आई डॉट आई सर्वाइव करता है, जे डॉट जे सर्वाइव करता है और के डॉट के सर्वाइव करता है, बस. बाकी कोई भी और, बाकी 6 जो होते हैं 0 होते हैं. तो अब आइए देखें कि इसमें कौन कौन 0 हो गए. आइए देखें इसमें कौन कौन 0 हो गए. देखिए आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, पर आई डॉट जे ये 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए. विल दिस बी 0 और नॉट? विल दिस बी 0 और नॉट? लुक एट दैट. Will this be 0 or not? Will this be 0 or not? Will this be 0 or not? देखते जाइए, यहाँ पे आई डॉट जे है, आई डॉट के है, जे डॉट आई है, ये सर्वाइव करेगा. Will this be 0 or not? जे डॉट के है. Will this be 0 or not? Will this be 0 or not? बस ये 3 अनबॉक्स जो है वही सर्वाइव करेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे. आप खुद अपने कन्विंस कर लीजिए, तब मैं प्रोसीड करूं. कन्विंस हो गए आप? Yes, sir. That's very good. That's very good. That's very good. Now come to think of it. अब सवाल ये उठता है, ये सब 0 हो गए तो मैं इनको क्रॉस आउट कर दूं, तो आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए. ये 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 बच्चे ये 3, बच्चे ये 3, ये तीनों क्या है भैया? आई डॉट आई इज 1. देखिए, I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1. That's why now you come to think of it, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो answer would be, what a beautiful and simple answer. That is A1 B1, A1 B1 or not? ये 1 हो गया, plus A2 B2 plus A3 B3. Look at the fun. Look at the fun. When I said कि कंपोनेंट फॉर्म बहुत ही हेल्प करता है सारे अलजेब्रिक प्रोसेस में, तो मैंने कहा कि व्हेन यू हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स, ऐड कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, एडिशन हो गया. 3 वेक्टर ऐड करने हैं, आप कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ऐड कर दीजिए. आपको स्केलर मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट सब्ट्रैक्शन. आपको स्केलर मल्टीप्लाई करना है, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन, दैट इज हर कंपोनेंट पी टाइम स्ट्रेच हो गया. अग्री और नॉट? और नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या वर्ड यूज करेंगे? इफ यू हैव टू कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट, ओह माय गुडनेस, मल्टीप्लाई कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, A1 B1, A2 B2, A3 B3. Isn't it dot product? Isn't it dot product? Isn't it dot product? Could you all get this very clearly? Yes, sir. Very clearly. So this is what is a beautiful way of computing dot product. अगर आपको कोई शैडो नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, बस कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू गेट द सम ऑफ, सॉरी, यू गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स. कैन वी प्रोसीड? Can we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now, there are several applications of dot product. There are several applications of dot product in physics. Several. As we proceed further,
and you go to the work energy chapter, so we'll get to see that work can be computed by dot product of force and displacement. That is the first application. But there will be several more. आप क्लास 12 में जाएंगे आप तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के लिए कंप्यूट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ लगाने के लिए करना होगा, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट होगा. तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड वेरी abundant use in physics. So all these applications will be explored when we go to those chapters and the topic is being talked about. तो तभी हम आपको बताएंगे, देखिए इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. अभी मैं एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन का बताना चाहता हूं कि डॉट प्रोडक्ट कितना अल्टीमेट है. डियर फ्रेंड्स, लास्ट रन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने गलत आंसर दिया था. आशी ने एक आंसर दिया था, बहुत अप्रॉक्सीमेट थी, √14, और फिर कुछ बच्चों ने 5A भी दिया, याद होगा ना आपको. तो वहां पे बात ये उठी थी, हमने एक क्वेश्चन जो है सब्सिडरी पूछा था. आई आस्क्ड अ सब्सिडरी क्वेश्चन कि दैट इज व्हाट डिड आई आस्क. आई आस्क्ड अ सब्सिडरी क्वेश्चन कि अगर ये क्यूब है, did I or not? If you recall correctly, those who were there in the class in the previous turn must be recalling this very correctly, I guess. ना, अगर if it is a cube, size does not matter, but इतना important है कि ये क्यूब है. ये it is a cube, you know. ये क्यूब है. तो उसके 3 फेसेस जो कि एक पॉइंट में मिल रहे हैं, जैसे कि इस पॉइंट पर 3 फेसेस कौन कौन से मिल रहे हैं, पीछे वाला, साइड वाला और फ्लोर, ये 3 फेसेस मिल रहे हैं. तो अगर उनके डायगोनल ड्रॉ करें, आई आस्क्ड द क्वेश्चन, आई गेव द आंसर टू यू आल्सो, वेरी कन्विंसिंग आंसर. ये एक डायगोनल है पीछे वाले फेस का, ये डायगोनल है इस वाले फेस का, और ये डायगोनल है फ्लोर का. सो पीपल बिलीव दैट, एंड दैट इज वाई आशी आंसर वाज रॉन्ग, कि सबके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि इस फेस और इस फेस के बीच में एंगल 90 है, इस फेस और इस फेस के बीच में एंगल 90 है, तो डायगोनल के बीच में एंगल 90 होगा. ये पहली बिलीफ होती है लोगों की. फिर हमने आपको बहुत स्मार्ट तरीके से बताया कि भाई ये क्यूब है तो सारे फेस आइडेंटिकल हैं, तो अगर मैं टॉप फेस का भी डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो टॉप फेस का भी डायगोनल ड्रॉ कर दूं, टॉप फेस का भी डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो ये जो है, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर, तो ये एक तीनों लेंथ बराबर होंगी क्योंकि सारे फेस आइडेंटिकल हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. दैट्स व्हाई द एंगल वुड बी 60 डिग्री. डिड आई कन्विंस यू और नॉट? एंगल वुड बी 60 डिग्री. तो हाउ misleading 3D figure can be and 3D perception can be to the student, कि आप जो एंगल 60 है उसको बच्चे 90 बताते हैं. एंड फॉर लास्ट 25 years आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द क्लास कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द diagonals of the faces of a cube meeting at a point. People say 90. Nobody in last 25 years gave correct answer. Nobody in last 25 years, let me tell you. So it is such a common misperception. Anyways, सोचिए अगर ये टेक्निक मेरे पास ना होती, ये ज्योमेट्रिकल टेक्निक, तो हम लोग क्या करते हैं. फॉर दैट मैटर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ना, अभी फॉर द टाइम बिंग इसको आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इसको भी बाद में करेंगे. पर फॉर द टाइम बिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछता सिंपल सा, वर्क इट आउट. Find the angle between vectors इनके बीच में आप एंगल बताइए.
What is the angle between these two vectors? आइए इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचेंगे अरे एंगल अगर गंदा सा आ गया तो कैसे लिखेंगे। आइए एक एक आपको दो तीन इनफॉर्मल नॉलेज आपको दे दूं। आई एम स्लाइडिंग द पेज एंड गिविंग फ्यू इनफॉर्मल नॉलेज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। दो तीन बातें जो हमको बतानी है किसी स्टेज पे, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोई पूछा व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, तुरंत कह देंगे 60 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है cos 61 होता है। किसी ने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, व्हाट इज थीटा, तो आप तुरंत कह देंगे हाँ 45। कोई ने कहा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा बताइए, तुरंत बता देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। पर मान लीजिए हम आपसे पूछे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, अब थीटा क्या होगा। ये तो कोई टेबल में आता नहीं भाई। आपको टेबल किसकी पता होती है, 0 की, 30 की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसी की तो पता होती है ना। यही फेमस एंगल होते हैं ना। इनके अलावा भी तो एंगल होते हैं। अरे कोई भी हो सकता है, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे कि व्हाट इज थीटा। तो उसका एक तरीका है, स्मार्ट तरीका है लिखने का, कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। आपको समझ में आ गया, इसे कहते हैं साइन इनवर्स। तो साइन यहाँ पे साइन रेस पर -1 करते हैं, पर पढ़ते हैं साइन इनवर्स। जैसे हम यहाँ पे थीटा को अगर 60, अब मान लिया आपको याद नहीं आ रहा था तो आप ये लिखते तो कोई बुराई नहीं होता, कॉस, बोलिए कॉस इनवर्स 1/2। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं, कि अगर मैं कॉस थीटा से थीटा जानना चाहूँ तो इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कॉस की जगह कॉस इनवर्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, क्योंकि सारे एंगल तो आपको नोन नहीं होंगे। यहाँ पे थीटा का tan इनवर्स 1/√3, समझ में आ गया। ये बोलने का तरीका, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। जैसे किसी ने कहा कि टेल मी tan थीटा इज इक्वल टू 5, व्हाट इज थीटा, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल भैया tan इनवर्स 5। लो खत्म, आपने, आप स्मार्ट थे, हम भी स्मार्ट हैं। समझ में आ गया आपको पूरा कहानी। ये बातें आप, Yes, sir. ये बात पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आएगी। दैट इज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इन एंगल के अलावा आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में ही आपकी दुनिया कन्फाइंड है। यही आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप जानते हैं। पर आपके इसके बियॉन्ड भी एक रेशियो है जो आप जान सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट और है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि 5, 12, 3, 4, 5 का है। 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3, 4 एंड 5 है ना। पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है कि नहीं करता है। जो भी तीन नंबर पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करें उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सवाल ये उठता है कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होता है 37 डिग्री, रिमेंबर दैट। ये कोई बताएगा नहीं आपको, मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यू आर सपोज टू नो दैट। एग्जाम के पेपर में मेंशन नहीं होगा। यू आर सपोज टू नो दैट 3, 4, 5 वाले में जो बेस एंगल होता है वो 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। अग्री और नॉट। तो आपको ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और पता लग जाते हैं। जैसे कोई पूछे व्हाट इज साइन 37, कोई पूछे व्हाट इज साइन 37, तो इस साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 और नॉट। कोई पूछे व्हाट इज cos 37, cos 37 इज 4/5 और नॉट। आर यू गेटिंग द पॉइंट। कोई पूछे व्हाट इज tan 37, tan 37 डिग्री इज 3/4 और नॉट। एम आई करेक्ट और नॉट। और भी भाई, और भी क्यों, यही आप 53 का भी बता सकते हैं। देखिए ना, आप 53 के भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 53 के भी बता सकते हैं। 53 के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। कोई पूछे व्हाट इज साइन 53 डिग्री, तो इट इज गोना बी 4/5 और नॉट, बिकॉज परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा।
कोई पूछे cos 53 डिग्री बता दीजिए, तो विल इट बी 3/5 और नॉट। कोई पूछे tan 53 बता दीजिए, श्योर और नॉट, तो विल इट बी 4/3 और नॉट, श्योर और नॉट। तो ये एक भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी बहुत ही काम का है। तो ये आप यू आर सपोज टू नो दिस कि 3 4 5 वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 के सामने वाला 50। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एक्चुअली ये एंगल जो होता है ट्रूली स्पीकिंग 36.9 होता है, तो दैट्स वाई ये 53.1 होता है, बट ठीक है आप 37 मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमने एक इन्फॉर्मल बात आपको बताई जिससे कि आपको आंसर बताने में परेशानी ना हो। Excuse me, sir. हाँ बताएं। Sir, in these three sine, tan, and cos, sir, no one is irrational. No one is irrational because all the rational numbers are involved as base, perpendicular and hypotenuse. No one is irrational. No trigonometrical ratio would be irrational in this. Okay, sir. Right. Yes. बताइए भाई, ये एंगल क्या होगा इन दोनों वेक्टर के बीच में? So let me work it out. This is one of the beautiful aspect of dot product. Look at that. I am going to compute the dot product in two different manners. अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज ए डॉट बी, तो फर्स्ट आंसर वुड बी, एवरीबडी फॉलोज द शॉर्टेस्ट रूट, यू नो, कहीं से कहीं तक जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही लोग फॉलो करेंगे। तो व्हाट इज द शॉर्टर रूट? द शॉर्टर रूट इज ओवर हियर, दिस, let me box it, that a beautiful formula that we have got, a dot b is component by component multiplication, that is आप आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय यहाँ पे आई कंपोनेंट कितना 1 इंटू 1, अग्री और नॉट। यहाँ पे आई जे कंपोनेंट कितना बोलिए 1 इंटू -1, दिख रहा है कि नहीं? अरे भाई इसका आई कंपोनेंट इज 1, इसका भी आई कंपोनेंट इज 1, तो 1 इंटू 1। जे कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 इंटू -1, एम आई करेक्ट और नॉट? इट इज -1 और नॉट। और के कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा -1 इंटू बोलिए 1। तो ये कार्तिकेय यहाँ पे आप मिस्टेक करके 1, ये क्या होगा 1 इंटू -1 इज -1 और 1 इंटू -1 इज -1, तो दिस कम्स आउट टू बी -1 ओवरऑल। तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ये बात तो कंफर्म होती है कि डॉट प्रोडक्ट -1 है। ये मेरा एक आंसर हो गया और इसको मैंने बहुत ही प्रेशर से मेरे लिए मैंने इसको अपने स्टोर में रखा, इसको मैं बाद में यूज करूंगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -1 आया, अच्छी बात है। पर एक बात बताइए मेरे को, डॉट प्रोडक्ट का एक और फंडामेंटल डेफिनेशन है, क्या है वो फंडामेंटल डेफिनेशन? आप बताइए मेरे को, बिल्कुल टॉप पे जाइए। डॉट प्रोडक्ट की फंडामेंटल डेफिनेशन इज डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दैट और नॉट? तो जब ये है मेरा डॉट प्रोडक्ट का फंडामेंटल फॉर्मूला, तो ये भी इसी के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गोना बी, आपको बताया था, डिड आई और नॉट? Let me go back if you are not recalling that. Let me go back if you don't recall that. So I'll show you. Can you see that the magnitude of any vector can be got by square rooting the sum of squares of component? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? याद आ रहा है कि नहीं? आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट को स्क्वायर करिए, ऐड करिए और फाइनली स्क्वायर रूट ले लीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो लेट मी कम ओवर हियर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गोना बी? मैग्नीट्यूड ए गोना बी अंडर रूट, बोलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, बोलिए अग्री और नॉट? इज इट √3 और नॉट? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगेन इज स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना, प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोलिए अग्री और नॉट? तो दैट इज कितना? बोलिए √3।
अब मेरे को ये बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट इट इज नथिंग बट a into b into cos theta, that is product of magnitude of two vector multiplied by cos of angle between them. तो दैट्स वाई मैंने डॉट प्रोडक्ट दूसरी तरह से ऐसे परसीव किया, मैंने दूसरी तरह से डॉट प्रोडक्ट को परसीव किया कि a डॉट b इज गोना बी a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, श्योर और नॉट, फंडामेंटली यही है कि नहीं, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ये बताइए a कितना है, मैग्नीट्यूड √3, b कितना है √3 इंटू क्या, इंटू कॉस थीटा। हमको थीटा पता ही नहीं, हमको दोनों भी वही तो हमको निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन कॉस थीटा, अग्री और नॉट, विच इज गोना बी √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 कॉस थीटा। भैया ये बताइए, ये भी मेरा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है और ये भी मेरा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ये जो इनका वैल्यू आया -1 कंपोनेंट फॉर्म से, और ये जिसका 3 cos थीटा वैल्यू आया, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे। दैट्स वाई 3 cos थीटा इज गोना बी व्हाट, 3 cos थीटा इज गोना बी -1, implies that cos theta is equal to -1/3, implies that theta is equal to cos inverse -1/3। श्योर, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. All of you have understood this? Well, let me take a question. There's a cuboid, you know, not cube, cuboid. There's a cuboid. जब साइड्स इक्वल ना हो तो उन्हें क्यूबॉइड कहते हैं, आपको पता है। इसकी ये एज जो है वो 1 है, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ई वाली एज 1 है, ई वाली एज 2 है, ई वाली एज 3 है, ठीक है ना? श्योर? ई वाली एज 3 है, राइट? कोई डाउट? इन दोनों डायगोनल के बीच में एंगल बताइए। ये फेस का डायगोनल, फ्लोर का डायगोनल, और ये दीवार, आपको दिख रहा है ये फ्लोर का डायगोनल और ये दीवार का डायगोनल के बीच में एंगल बताइए। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू। I mean, if you want to write this, the question can be written as find the angle between diagonal of the faces two faces of a cuboid shown in the figure.
Yes. बताइए. Sir, Yes. sir, 90 degree. Who is answering? Sir, Ashi. 90? No. Yes. Anybody? Sir, Yes. answer is 30 degree. No. Yes. Anybody was wanting to answer? Sir, cos inverse 1 by 5 root 2. Who said? Sir, Saksham. Cos inverse 1 by 5 root 2. 5 root 2. Okay.
एनीबडी एल्स? सर कौन? सुदीक्षा। सुदीक्षा। ओके, सुदीक्षा। कॉस इनवर्स आंसर इज cos inverse 1/4 1 by 4. by 4. 1 by 4. Okay. Anybody else? Yes, sir. Who? Sir, Karthikeyan. कार्तिकेय बताइए। Sir, my answer cos inverse 1/5 root 2. कार्तिकेय का भी यही है, कार्तिकेय। ओके, लेट मी वर्क इट आउट। दोनों ने यही आंसर दिया है। सुदीक्षा सेड 1/4। ओके, लेट मी वर्क इट आउट। ओके, डियर फ्रेंड्स, कंसीडर x axis along किसी भी along y axis along this and z axis along this. After all, it is a cuboid. आप ये बताइए मेरे को बहुत सीधी सी बात, इस वेक्टर को अगर मैंने फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग इट, अगर इस वेक्टर को मैंने लेट से वेक्टर ए कह लिया, I call it vector A. Agree? And for the sake of calling it, let's call this as vector B. After all, मेरे से पूछा गया A और B के बीच में एंगल बताइए। अब सवाल उठता है A और B होंगे क्या? Now come to think of it. What is this vector? ये लेंथ तो 3 है, पर what is this vector? ये वेक्टर क्या होगा बोलिए? Will this vector be 3i cap or not? बोलिए हाँ या ना? हाँ होगा कि नहीं होगा? Will this vector be 3i cap or not? Because x along और 3 यूनिट है इसका. What is this vector? Will this vector be 2j cap or not? Or what is this vector? Will this vector be k cap or not? येलो वाला k cap होगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए बेटा, बहुत सीधी सी बात है, ये एक पैरेललोग्राम है। कौन? बेस एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको ऐसे। इज इट ए पैरेललोग्राम और नॉट? अब ये दो वेक्टर कॉमन टेल से मिल रहे हैं। कौन दो वेक्टर कॉमन टेल में मिल रहे हैं? ये k कैप और 3i कैप, और उनका ये रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? तो विल ए बी इक्वल टू 3i कैप प्लस k कैप और नॉट? बोलिए हाँ या ना? विच कैन बी रिटन एज 3i कैप प्लस 0j कैप फॉर द सेक ऑफ राइटिंग प्लस k कैप। मैंने j नहीं था तो मैंने 0j कैप लिख दिया, जिससे कि तीनों लिख जाए। इन अ लाइकवाइज मैनर आप ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है? इज इट अ पैरेललोग्राम और नॉट? एग्री और नॉट? ये वेक्टर और ये वेक्टर, कौन दोनों वेक्टर? ये वेक्टर और ये वेक्टर कॉमन टेल से जाते हुए दो वेक्टर हैं, और ये इनका रिजल्टेंट बी, इनका रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो बी क्या हुआ बेटा? k कैप और 2j कैप का सम हुआ, इसलिए बी क्या हो गया? बी हो गया, व्हाट इज दिस बी? तो बी इज गोना बी 0i कैप। वाई 0i कैप? आई कैप है नहीं, इसलिए 0i कैप लिख लेते हैं, प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बोलिए हाँ या ना? अब मैंने a डॉट बी दो तरह से कंप्यूट किया, एक कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कंप्यूट किया, तो a डॉट बी क्या आया? अरे भाई, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते? बोलिए अग्री। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए भाई, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कहाँ बताया था मैंने? ये कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते? ये देखिए आंसर, a1 v1 a2 b2 a3 b3। तो अब मैंने a डॉट बी निकाला, ठीक है ना? तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 0। आई वाला पार्ट 3 इंटू 0 हो जाएगा कि नहीं? आई वाला पार्ट 3 इंटू 0। जे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2, ठीक है ना? और के वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बोलिए के वाला पार्ट क्या हो जाएगा? के वाला पार्ट हो जाएगा 1 इंटू 1। ओ माई गुडनेस, दैट मीन्स ओनली वन ऑफ देम सर्वाइव। ये 3 इंटू 0, 0 इंटू 2 0 हो गए, ये 1 हो गया। अब बताइए ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए का मैग्नीट्यूड हुआ, इफ आई कैन अफोर्ड टू शिफ्ट इट, ओ माई गॉड,
if I can afford to shift it, your answers little bit, maybe here, okay, maybe here, maybe here, or maybe slightly more. ओके बाद में देखते हैं कौन सा है, अभी हमने वर्कआउट नहीं किया। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, बोलिए बोलिए बोलिए, अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, तो दैट इज अंडर रूट 10, राइट। बी का हो जाएगा कितना? अंडर रूट 0 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, दैट हो जाएगा रूट 5। श्योर? ओके, नाउ if I compute a dot b from second method, a dot b from second method, it is gonna be a into b into cos theta. Agree or not? What is a gonna be? a क्या है बेटा? a रूट 10 है, b क्या है? रूट 5 है। इसको इनफैक्ट चलिए b को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 और cos थीटा। अग्री और नॉट? अब ये बताइए, एक तरह से डॉट प्रोडक्ट मेरा आया 1 और एक तरह से डॉट प्रोडक्ट मेरा आया रूट 10 इंटू रूट 5 इंटू कॉस थीटा, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दोनों इक्वल होंगे। दैट्स वाई रूट 10 इंटू रूट 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और रूट 10 इंटू रूट 5 इज रूट 50, रूट 50 इंटू कॉस थीटा is equal to 1, so cos theta is equal to 1 upon root 50, which is 1 by 5 root 2, so theta is equal to cos inverse 1 by 5 root 2. Very correct answer, Saksham and Kartikeya. Sudiksha slightly wrong, but it is okay. You also worked out quite close. ठीक है ना? So this is what is the answer, right? So, well, this is what it is, right? So this is one. Now you can see that कि ये क्वेश्चन जब आपने कर लिया तो आपको जो प्रीवियस टर्म में मैंने आपको बताया था वो कितना आपके लिए आसान होता, उसे मैं आपको बस बना के वर्कआउट करके लेक्चर को एंड करूंगा, राइट। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, राइट। नाउ अब मैंने लास्ट वन पे ऐसे इनफॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, दिस इज व्हाट आई सेड, एंड नाउ यू नो हाउ सिंपल इट विल बिकम फॉर यू, हाउ सिंपल इट विल बिकम फॉर यू, you can see that how simple it will become for you. This is a cube. मैंने आपको ज्योमेट्रिकली इसका एंगल बताया था। बच्चे मिसलीड होते हैं कि बच्चे कहते हैं 90 डिग्री होगा बट एक्चुअली 60 आया था, इफ़ यू रिकॉल करेक्टली। तो मैंने आपसे कहा भाई अगर ये एक फेस है इसका डायगोनल ये फेस इसका डायगोनल ये है तो इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा। और ये क्यूब है, क्यूब की हर साइड को 1 मान लिया, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। इसको 1 इसको 1 इसको 1 ना, सारे 1 1 है, क्यूब है तो बराबर ही होगा। नाउ हाउ सिंपल इट इज, यू नो, if I take it as x axis, if I take it as y axis, if I take it as z axis, can you see that this vector can be considered as what? I cap। ये I cap हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Will it be I cap or not? Will it be I cap? बोलिए हाँ या ना, right? Will it be I cap or not? Will this be J cap or not? This is J cap, and will this be K cap or not? How simple now? देखिए मान लीजिए आपको सुविधा नहीं थी ज्योमेट्री वाली, तो इसमें ये देखिए कितना फॉर्मल तरीका, कितना अच्छा तरीका है जानने का एंगल। और इस वेक्टर को मैं कहता हूँ A और इस वेक्टर को मैं कहता हूँ B। मेरे को A और B के बीच में एंगल चाहिए था। व्हाट इज A इक्वल टू? कैन यू सी दैट A इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू I कैप प्लस K कैप। बोलिए अग्री और नॉट? I कैप प्लस K कैप और नॉट, which can be written as I cap plus 0 J cap plus K cap। बोलिए अग्री और नॉट? और B क्या लिखा जा सकता है बेटा? B लिखा जा सकता है J cap प्लस K cap, J cap प्लस K cap। देखिए ना भाई, J cap प्लस K cap और नॉट,
जे कैप एंड के कैप, इसी का तो डायगोनल है ये, तो इसलिए दैट इज व्हाट इट इज, जे कैप प्लस के कैप विच कैन बी रिटन एज 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मैंने कंपोनेंट बाय कंपोनेंट लिखा तो क्या आएगा, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट लिखा, let me slightly shift the figure so that I can write the magnitude of A and B here. Okay, what is A dot B gonna be? A dot B gonna be component by component. तो ये है 1 और ये है 0, तो 1 into 0 प्लस ये है 0, ये है 1, तो 0 into 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 into 1, तो that is gonna be 1. अदरवाइज ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए का मैग्नीट्यूड हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए, अगर एरो हटा के मैग्नीट्यूड को लिखें तो ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इज √2। और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, बी का मैग्नीट्यूड 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इज √2 अगेन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू कॉस थीटा विच इज 2 कॉस थीटा। अब दोनों डॉट प्रोडक्ट इक्वल होंगे, दैट्स वाई क्या लिख सकता हूँ, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, immediately you get theta is equal to 60 or not. Can you see that? Can you confirm that? Yeah, Yes, sir. that's the beauty of dot product. It can give you the angle between two unknown vectors. Okay. So let me stop presenting the screen and then sign off. Okay. So I will stop presenting, and now this is where we are. Right. So now, after half an hour, I will take maths lecture. So it is because of delay, it's 4:28. So almost at 5 to 5 maybe, or 5, I'll pick up the maths lecture with the same link, right? So those of you who want to be the part of can join the maths lecture, and after I finish the lecture, maybe in an hour or two, or maybe in the evening or night, I'll publish it in the YouTube. So anybody who wants to recollect can recollect. Okay. So I'm signing off.